Hello, good afternoon. I hope that I'm visible to all of you and even the screen is visible to all. Yes, everything is fine. You can start now. Okay, thank you. So, firstly, before moving on to the next topic, so I was going through some questions which were asked in the previous year of civil services. So I found that the concept which we have covered, questions were basically on those only, and we do not require an extensive detail or much more explanation of friction or anything which needs to be covered. In future, we can add that, but I just want to know that whether the things which have been taught by now regarding friction or anything is is there any doubt in those things, friction or vector quantities, scalar quantities? So if no doubts in friction or anything, then we can proceed further and start with the new chapter, because फ्रिक्शन पे जो क्वेश्चंस थे उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से जितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे हैं उससे ज़्यादा आएंगे नहीं कॉन्सेप्ट, बट स्टिल विल डू वन क्वेश्चन टुडे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड. Okay, no doubt. So, okay, just one question. I don't remember that if we have done this question previously or not, but still we'll solve this question. Uh, so the question is on the screen and it is visible to all of you. So let us try this question and see what is the answer of this question. And people, yeah, one more thing. And people who are from physics background and or anyone of you who has something to add to friction or something which I might have missed out, then please do add, because we all are here to learn. And कुछ भी अगर miss हुआ है then please do add that thing, so that even others can know कि हाँ, क्योंकि एग्जाम में मिस नहीं होना चाहिए. यहाँ पे मिस हो रहा है so we can rectify it, but वहां पे मिस नहीं होना चाहिए. So if someone has to add something from who is from physics background or not even from physics, so please add and solve this question. So we'll take around 5 to 6 minutes for this whole process and then we'll move on to the next chapter. Firstly, I'll give the answer and then we'll talk about that if something has to be added by any of you present here in the class right now. I think this is an easy question because the whole FBD has been given to you. Everything is in front of you. You just have to apply a formula. That is a very simple formula which you have used at so many places. Is anyone trying this question, or shall I solve this if you're not able to answer this? It should be 10 meter per second square. Option B. Okay. Okay, I haven't solved this question, so let's see what it should be. Let's see. I hope that this is the right answer, 10 meter per second square, but we'll have to solve to know. Option B. Okay, so majority are saying option B, but let's see what is the answer. I have not solved this question, so let's see. So as it is clearly visible to all that a block of 10 kg is kept. Okay, a force of 100 Newton is there. Friction coefficient has been given as 0.5. Okay, then okay, now I'm getting, now 10 meter per second squared should be the answer. Are you sure? Uh,
if we say, see, acceleration is, what is acceleration? Net force, right? Am I audible, right? Net force. So net force, इधर क्या लग रहा है, दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है? 100 न्यूटन. So let me just solve it in the copy as well. So 100 Newton towards this side, and friction, as I already told, relative motion को oppose करेगा. So what is friction? Mu into n. So that would be 0.5 into n, that is 10 kg. Okay, and g is equals to, also we have taken 10. So that means 10 kg, and as we know that this is the mass. Okay, that's why g has been given already. So 10 into 10, that means around, it comes around 50, right? 100 toward this direction and 50 towards this direction. So I guess 100 minus 50 is what? 50. Right, Shubham? How did you guys found out the answer to be 10 meter per second square? Because 10 would be the answer if we are taking only this force, 100 Newton. Then it would be 10 meter per second square. But we have to consider friction as well. Are you getting the point? Net force, okay, yes, miscalculation, then it's fine. Then it's fine. But you have to take friction as well, right? 100 Newton either, and then friction either. So net force, 100 minus 50, that is 50. Then 50 upon 10, that is 5 meter per second square. So shouldn't option C be the correct option? Option C, right? And those who have said option B, are you getting it, that how this came out to be option C? I hope that you are getting it, that ये C क्यों है option 10 नहीं है, क्योंकि friction की बात हो रही है यहाँ पे. Okay. And see, one more thing. In the question, like in this question, they did not confuse you, but they could have, if they would have said, they haven't written that, some anywhere they haven't written that this is the mass or the weight. Okay, but see this bracket, they have given g is equals to 10 meter per second square, just to confuse. Okay, but they could have confused using the options as well, then the answer would have been different. If they had given say 100 minus 5 is 95, 95 upon 10, and if they would have given 9.5 meter also in the option, then you might have ticked that option as well, because they haven't said that this is the weight of the block. There is nowhere where it is written that this is the weight of the block. And friction is mu into n. N is m into g. This is the mass. This is the mass, and this is g. That means we have to calculate the weight, and then we'll have to apply into the formula. Okay. So just for confusion, they haven't written, and in bracket they have given g is equals to 10 meter per second square, so as to confuse you. And had the option been 9.5 also, so many would have ticked that as well. So we have to see a question very properly, that what are they trying to imply. See, it's not that it's a vague question or it's indefinite, it's just that they're trying to confuse. And in the bracket they have written 10 meter per second square, just to indirectly ऐसे confuse करने के लिए कि we'll be taking 0.5 into 10 or 0.5 into 10 into 10. So the answer, that's why is 5 meter per second square, and not 9.5 meter per second square, which is not an option also. So it becomes easier to see that it is not in the option. So yeah, definitely 5 meter per second square is the only possible answer which we can see here. So now friction, once again I'll repeat, it opposes relative motion. We have read this. Now if someone has to add something, question answer session we'll have later. If someone has to add something to friction, just add it, so that even others can know. Yes,
we did not talked about this, or I might have missed it out. So please add if someone has to add. Anyone, no issues, because I haven't seen all the questions of fiction, uh, which were asked in the CSAT or in the paper one also, or in the previous year anywhere. So please add if someone has to add something. Then we'll proceed with the new chapter. By the time, just let me see, have a quick look that if something which I have missed out, which needs to be covered. Okay, pressure only we have left, but that also I've given a brief intro. So pressure we'll cover later, but it's okay. Pressure is not that important. It is important, but yes, that is a small topic and that could be covered later. So yes, pressure I'll cover also in an extensive manner. I'll cover. We don't have to worry about that. Force is done. Motion measurement time is done. Friction we have done, and then the next chapter, which is gravitation. So we are about to end our classical physics, and we'll be starting off with some questions. Thereafter, we'll be solving many questions as well. So it's kind of an end, but just 2 chapters left. So, and till here, everything is covered except pressure, which is a small chapter. As per our requirement, most of the thing is covered. Exactly. Vectors. Now, just a quick recap before starting a new chapter. Physics. Okay, fine. This example you all remember. Motion, you all remember I gave you a very good example. Rest and motion, reference point, everyone remembers. The reference frame जिंदगी में शायद नहीं भूलेगा कभी भी. If you just get this image into your mind, and eidetic memory is much uh, way stronger than our textual memory or written memory. So बिल्कुल ये इमेज याद रखो, ये रेफरेंस फ्रेम कभी नहीं भूलेगा कि क्या बात होती है. फिर टाइप्स ऑफ मोशन ये भी कवर हो चुका है सब. एग्जांपल, ये एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, तो ट्रांसलेटरी मोशन वाला क्वेश्चन था. देन मोशन स्पीड टाइम, एवरीथिंग इज क्लियर. स्पीड का पता है. हाँ, ये वेक्टर स्केलर एवरीवन knows very well by now कि what are scalars, what are vectors. Then distance displacement, then we did this question as well. फिर ये क्वेश्चन था चूज द करेक्ट ऑप्शन. मोस्ट ऑफ यू डिड इट करेक्ट. स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन बिल्कुल अच्छे से. बस ये 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना. एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. बस 1D मोशन के लिए एप्लीकेबल है. ठीक. देन फोर्स क्या होता है, वी नो, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था. हर चीज मतलब एक ग्राफिकल मेमोरी के थ्रू विल ट्राई टू कोरिलेट एंड रिकॉल व्हेनेवर वी फॉरगेट कि फोर्स क्या होता है, वेक्टर्स को कैसे याद करना है. एवरीवन रिमेंबर्स दिस एग्जांपल वेरी वेल. देन देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच वी डिड. मोमेंटम, हाँ मोमेंटम में अच्छा, देयर वर सम पीपल हु हैड प्रॉब्लम्स. सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बेसिकली, so conservation of momentum, see, it's nothing, it's just a formula which has came out of the Newton's third law of motion. So उसको बस याद करना है हमें, एंड उसका एग्जांपल भी मैंने दिया ही है. मोमेंटम का तो दिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी ये एग्जांपल था गन वाला है. ठीक. तो इससे हमेशा याद रखना कि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है. एक सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक. m1u1 इज इक्वल टू m2u2 वाली जो चीज है. मल्टीपल बॉडीज होंगी तो m1 हो जाएगा, m2 हो जाएगा, m3 हो जाएगा, m4 हो जाएगा, बट हमेशा इक्वल रहेगा बिफोर और आफ्टर. बस ये न्यूटन के थर्ड लॉ से आया था, वो हम डिराइव भी किया हम लोगों ने अच्छे से. थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको क्लियर है एकदम. फिर क्वेश्चंस कुछ कुछ किए थे. रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बताया था. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अच्छा, ये अब ये बहुत अच्छे से समझाया था. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहाँ की टेबल, बस यही क्वेश्चन सिंपल से एकदम समझाया था कि सपोज देयर आर 2 people, से मी एंड शुभम इज देयर. Shubham is having
100 rupees, I am having 100 rupees at now. At this current moment, we both are having 100 rupees each. Now what happens? Shubham gave me his 50 rupees. So he'll be left with 50 rupees. I'll get 50 rupees. So now what happens? My total amount is 150. His total amount would be 50. But the change is total conserved. 50 गया, 50 आया. That is it. बस यही मोमेंटम है. मोमेंटम इज कंजर्व्ड. कंजर्व मतलब चेंज नहीं हो रही वो चीज. ठीक, ऐसा नहीं है कि शुभम गेव मी 50 रुपीज and still he is having 60 rupees, because I'm not saying that he might not have more than 100 rupees. He definitely might be having more than 100 rupees, but we are considering the case of only 100 rupees. Okay, only 100 rupees we are considering. बाकी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब हटा दो उसका. अभी 100 रुपीज की बात करो तो 50 अगर देगा तो 100 में से 50 जाएंगे, 50 और मेरे पास आएंगे, बस -50 +50, मोमेंटम कंजर्व. दैट इज इट. एंड टोटल खुद ही देख लो, 100 100 200 50 150 200, कुछ चेंज ही नहीं हुआ. यही है मोमेंटम कंजर्वेशन और कुछ नहीं है. ये भी एक एग्जांपल था कि in most collisions between two objects, one object slows down and loses momentum while the other object speeds up and gain momentum. जितना उसने खोया, जितना शुभम ने मुझे दिया, उतना उसने खो दिया ना. 50 अगर मुझे दिया तो 50 खोया भी तो अपने तरफ से. उसका -50 में क्या, मेरा +50 में है. दैट इज कंजर्वेशन मोमेंटम. इससे रियलिस्टिक और आई डोंट थिंक देयर इज एनी एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. सो बहुत बेसिक तरीका है यही कि आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आप जितना वो गेन कर रहा है उतना ही आप लूज कर रहे हो, बस यही मोमेंटम है. ठीक. प्रेशर भी देखो, वी डिड प्रेशर, बट ठीक है, प्रेशर को और हम लोग ढंग से कभी अगर लिक्विड्स में, लिक्विड्स वाला आता नहीं है बिकॉज आई हैव सीन देयर वर नो क्वेश्चंस ऑन दैट. तो लिक्विड्स वाला नो इश्यूज, वी कैन डू दैट समटाइम जस्ट फॉर आवर नॉलेज, बट लिक्विड वाला नहीं आता है. आई हैव अ बुक एंड आई वाज सीइंग क्वेश्चंस ऑन दैट. लिक्विड वाले क्वेश्चंस मुझे दिखे नहीं. फिजिक्स का जिनका ऑप्शनल है, दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद उनका में आता हो, मतलब शायद क्या, उनके में तो आएगा ही आएगा. बट हम लोग के लिए वी डोंट रिक्वायर टू लर्न अबाउट दैट. फ्रिक्शन ये याद रखना है बस. इससे मतलब ये स्टेटमेंट एकदम दिमाग में होनी चाहिए. रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे बिल्कुल, अभी नहीं. ये इसका फॉर्मूला है, ये सब लिखा हुआ है कुछ कुछ. ये स्लाइड मिलेगी जब तो सबको पता ही चल जाएगा. ठीक. अब क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे बहुत अच्छे से उस समय. ये क्वेश्चन उस दिन सॉल्व किया था, सबको याद होगा. थोड़ा कंफ्यूजन था सबको इसमें, बट ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उस समय अच्छे समझा दिया था. ये भी क्वेश्चन जस्ट अभी किया है, सो अब कुछ बचा नहीं है. सो फाइनली आई कैन से दैट नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर which is gravitation. And if you all allow me, then please reply in the chat box. Once again, I'm asking you to do it so that we can proceed. And everyone is having now a basic concept. Everyone is having that. Yes, I am clear about I have a clarity about friction. I have a clarity about vectors. I have a clarity about scalars. Everything. Then we'll proceed. Only Shubham has answered till now. I want everyone to answer. All, at least those people who actively answer and proactively participate, at least those people, if they can answer, then I'll proceed to the next chapter. Thank you Shubham, thank you Mayank. Rest of the people, please participate, and then we'll move to the next chapter. Because अगर ये सब क्लियर नहीं है तो फिर आगे और दिक्कत हो जाती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है. Please, new people, I want, if there are new people in the chat, please, I want participation from you people as well, because you have missed a lot of classes. So please answer it quickly. Thank you Shruti, thank you Sejal, thank you Jaya, and new ones, please answer quickly. If you are listening to me or you have just left your screen on and gone somewhere, then at least revert back. Clear, everyone is clear. Okay, चलो ठीक है. चलो फिर ग्रेविटेशन में आते हैं. अब बस इतना रिप्लाई, इतना रिस्पॉन्स है, मतलब इतने लोग को समझ में आ गया, बस हो गया. अच्छा है कि हाँ समझ में आ रहा है लोगों को. ठीक है चलो.
चलो फिर ग्रेविटेशन पे आते हैं, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट अ स्टोरी, द स्टोरी ऑफ एप्पल एंड न्यूटन. So we have heard so many theories revolving around this particular thing कि एप्पल उसके ऊपर गिरा एंड न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी, न्यूटन डिस्कवर्ड दिस, न्यूटन डिस्कवर्ड दैट. ठीक. सो एंड बहुत लोग कहते हैं कि एप्पल क्यों गिरा यार, कुछ और बड़ा सा गिर गया होता है न्यूटन के ऊपर, तो आज ग्रेविटी नहीं पढ़नी पड़ती, आज ग्रेविटेशन नहीं पढ़ना पड़ता. जोक्स जोक्स हैं सब, बस ऐसे ही है, लोग ऐसा बोलते रहते हैं, बट ठीक है. ये पहली बात तो स्टोरी, दिस इज अ मिथ कि एप्पल फेल ऑन न्यूटन, वो पेड़ के नीचे बैठे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. एंड इट्स जस्ट मिथ कि लोगों ने बना दिया है. एक्चुअली हुआ क्या था, न्यूटन वाज सिटिंग इन हिज क्लासरूम, एज फार एज आई हैव रेड. इवन दिस माइट बी अ मिथ, but people have deduced their own stories. So he was sitting in his classroom and he was peeping out of his window pane, and he saw there a tree, so apple tree. And so what he saw, that he saw an apple falling down. So he thought कि apple गिरा उधर से. He was observing all this thing. Apple गिरा, नीचे क्यों गिरा, साइड में नहीं गया, राइट में नहीं गया, ऊपर नहीं गया, ब्रांच से टूटकर नीचे क्यों गिरा. तो दिस वाज द होल स्टोरी कि हाँ, दिस इज हाउ, मतलब पीपल से कि this is how Newton came to discover gravity, and thereafter he started doing his experiments on gravity, which are mentioned in many of the books. What were the few of the earlier experiments he did regarding gravity. Even I haven't read that, but we'll read it someday, and we all should read कि जान लेना चाहिए कि और क्या क्या experiments हुए थे. केवल ये because I think कि एप्पल न्यूटन वाली स्टोरी इज काइंड ऑफ होक्स स्टोरी, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, बट ठीक है, अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स के लिए ऐसा बोला गया था. सो हम लोग देखेंगे कभी कि क्या ऐसा हुआ था सच में, एंड उसके बाद न्यूटन ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए. तो उसने देखा कि वो एप्पल गिरा, एंड ही वाज थिंकिंग, पॉन्डरिंग अपॉन दैट कि व्हाई डिड इट फेल डाउन, why did it fall down and why not sideways. So this made him realize कि there is something कि जिसके वजह से चीजें नीचे आ रही हैं, and that thing is he called as gravity. That thing he called it as gravity. So just a second. So firstly, gravitation. Gravity is almost same. Gravitation एक होता है, मतलब फोर्स होता है, वो भी एक फिनोमेना होता है. Each and every massive body attracts each other by virtue of their masses. This phenomenon is called gravitation. Newton's law of gravitation states gravitation force of attraction between two bodies is directly proportional to their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. F is equals to capital G, that is gravitational constant, m1 m2 upon r square. G is the gravitational constant जिसकी वैल्यू हमको पता होती है. m1 and m2 डिपेंड्स क्या हम लोग बॉडीज ले रहे हैं, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. ये हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है. ठीक, काइंड ऑफ सेम. कंजर्व वर्ड का मतलब जहां पे आ रहा है तो मतलब कांस्टेंट है कोई चीज. ठीक, तो हम लोग ये पढ़ेंगे अच्छे से और डिटेल में. तो आज केवल हम लोग इंट्रो कर रहे हैं इस चैप्टर का. सो बेसिक बेसिक चीजों के थ्रू जान देंगे कि क्या बेसिकली व्हाट ग्रेविटेशन इज ऑल अबाउट, एंड होता क्या है असल में, ग्रेविटेशन का काम क्या है, ग्रेविटी क्या है. ठीक. तो सबसे पहले, तो बिफोर मूविंग ऑन, आई हैव सम मीम्स एज वेल टुडे एंड सम क्वेश्चंस फॉर यू पीपल एज वेल. सो सबसे पहले तो ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं. ठीक, कि ग्रेविटी क्या है. सो व्हाट इज ग्रेविटी. ओके, जस्ट अ सेकंड. सो व्हाट इज ग्रेविटी. इतनी क्लासेस पढ़ चुके हैं तो अब तक ये चीज तो मतलब आई थिंक रेयर ही कोई होगा जिसको पता नहीं होगा कि ग्रेविटी क्या होती है, क्योंकि हम लोगों ने ग्रेविटी को टर्म वाइज नहीं पढ़ा है.
बट हर चीज में ग्रेविटी का यूज किया है एक तरीके से। हर चीज में हम लोग जी इजिकल्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात करते रहते हैं। तो ग्रेविटी बेसिकली एक फोर्स है। ग्रेविटी इज अ फोर्स जिससे हम लोग को अर्थ अपने ओर खींचता है। ठीक। एंड ग्रेविटेशन एक फिनोमेना है। ठीक। बहुत अंतर नहीं है दोनों में। बस वही गुरुत्वाकर्षण बल एग्जैक्टली। इज देयर अ प्रॉब्लम? इज देयर सम नेटवर्क इशू? Yes, Aditya. Yes, I can read your message. Okay, so do I have to do something? Yes, only you can end the session. Okay, I can end the session. Yeah. Apart from that, everything is fine, right? Recording is on, right? Everything is perfect. Okay, fine. Thank you. Okay, so what is gravity? And as in the chat also people wrote Gurutvakarsan bal and everything. Yes, invisible force that pulls objects towards each other. Very good. Exactly. Invisible force that pulls objects towards each other. Now, as Shruti has given the definition, now let us ponder upon this definition. Okay, everyone see the chat. And Shruti, I'll request you to write whatever you are writing, the content part, the definitions, please write it for everyone so that everyone can see what you are writing. Okay, I'll just copy paste it. Okay, so this is what Shruti has answered. An invisible force that pulls an object towards, it pulls objects towards each other. Okay, fine. चलो ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स एक फोर्स है, हमने ये मान लिया। तो फोर्स तो हमने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक। सबने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है फोर्स। ये है सपोज मास m, ये हम है। ठीक। और ये है हमारी अर्थ, मास m। m, ये स्मॉल m है। ठीक। ये स्मॉल m, दिस इज कैपिटल M। सो दिस वी ऑल हैव रेड कि अगर ये हम पे कोई फोर्स लगाएगा तो हम भी इस पे कोई फोर्स लगाएंगे। हैवेंट वी? यू हैव रेड दिस कि अगर कोई हम पे फोर्स लगा रहा है तो हम भी उस पे फोर्स लगाएंगे। यू ऑल हैव रेड दिस? प्लीज reply in the chat. Yes, Shubham? Yes, you have read this. What was that thing? Newton's third law of motion. Okay, we have read this. But the question here which is कि फोर्स हम पे इसने लगाया, ठीक है, लगा लिया, हमको इसने खींच के रखा अपनी तरफ। बट ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम इसको अपने तरफ खींच रहे हैं। इसका क्या आंसर हो सकता है? हमें तो नहीं दिख रहा कि हम डेली उठ रहे हैं सुबह और अर्थ को अपने तरफ खींचते जा रहे हैं, कि ऐसे एक हाथ किया और अर्थ को खींच लिया अपने तरफ, पूरी अर्थ हमारे कंट्रोल में आ गई। ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो इफ यू ऑल रिमेम्बर देन आई टॉक्ड अबाउट दिस एज वेल, कि यहाँ पे बात हो रही है एक्सीलरेशन की। ठीक। अगर इसको एक तरीके से समझना हो तो एक तरीका ये है समझाने का, दूसरा आई ऑल्सो एक्सप्लेन। तो यहाँ पे बात हो रही है एक्सीलरेशन की। ठीक। ये जो अर्थ हम पे फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से इसने हमको खींच के रखा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, फाइन। एम एम, तो एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि अर्थ का मास इतना ज्यादा है? कितना है? 9 इंटू कुछ है ना शायद, 9 × 10⁻²4, पता नहीं कितना है, उससे ज्यादा ही है शायद। ठीक। तो इतना ज्यादा मास है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन घट जाएगा जब मास बढ़ जाएगा? ठीक। एकदम क्लियर स्टेटमेंट में बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन घटेगा जब मास बढ़ेगा। तो इतना हैवी मास है, क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग खींच भी रहे हैं, अगर अर्थ को खींच रहे हैं, बिल्कुल खींच रहे हैं, बट क्या वो एक्सीलरेशन दिखेगा हमको? बिल्कुल नहीं दिखेगा। इतना हैवी मास है। और हम लोग जो है कितने हैं? हम लोग केवल मतलब
अर्थ के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा, मतलब एटॉमिक लेवल पे तुम लोग समझ सकते हो कि हम लोग इतने छोटे। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अब वो जो फोर्स लगाएगी हम पे, उससे जो एक्सीलरेशन बनेगा, तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो अर्थ के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये मास तो बहुत छोटा है ना, और अर्थ का इतना हैवी मास है, तो सिंपल सी बात है, इतनी हैवी ऑब्जेक्ट है, इतना हैवी चीज है, तो एक्सीलरेशन इसके में बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मास जब घटेगा, क्योंकि मास बहुत छोटा है हम लोग का, कितना होगा एवरेज मास अगर दिया है 70 kg 50 kg, उससे ज्यादा मास होगा? अर्थ का इंटू 10⁻24 कर दो, तब अर्थ का मास आता है। तो कितना हैवी मास हो, कितना ज्यादा, हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते नंबर सिस्टम में, इतना हैवी है। तो वो एक्सीलरेशन तो हमको दिखेगा नहीं। हम लोग भी अट्रैक्ट कर रहे हैं अर्थ को, बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कहना कि हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं गलत है। बट यही हमने कौन से पढ़ा था कि फोर्सेस सेम हो सकते हैं, बट एक्सीलरेशन तो डिफरेंट होगा ना, क्योंकि एक्सीलरेशन डिपेंड कर रहा है क्लियरली हमारा मास के ऊपर। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग अर्थ को नहीं खींच सकते अपने तरफ, मास बहुत ज्यादा है, बट खींच रहे हैं, वो नेगले वो हमको दिखता नहीं है, क्योंकि हम, एज आई टोल्ड यू दैट, मास बहुत ज्यादा है अर्थ का। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हाँ, अर्थ को हम लोग खींच रहे हैं बट दिख नहीं रहा है। चलो एक क्वेश्चन और, चलो ये तो अर्थ की बात हो गई, ठीक। अब एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, 6 × 10⁻24, ओके विवेक, थैंक यू। ठीक, 6 × 10⁻24 था क्या कि 9 था? 6 × 10⁻24 से तो वो याद आ रहा है, मूलर वाला। चलो ठीक है, दैट विल डिस्कस लेटर, 6 था कि 9 था। चलो एक क्वेश्चन आई एम पुटिंग अप फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो यहाँ पे ऑफलाइन क्लास वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, सपोज टुडे आई विजिट द सेंटर, बेली में जो सेंटर है इलाहाबाद में, आई विजिट द सेंटर एंड अभी मैं सेंटर गया एंड आई फाइंड दैट यहाँ पे जो होस्ट है हमारे, जो भी जितने भी लोग हैं वहाँ पे, एंड एज सुन एज एंटर द सेंटर, जैसे ही मैं घुसा, तो ऐसा होगा क्या कि जैसे ही आई एंटर द क्लासरूम तो उधर से उठ के आके 5-6 लोग चिपक जाएंगे मेरे से? ऐसा होगा क्या कि वो वहां पे लोग जो खड़े हैं, जैसे ही मैं घुसा, क्योंकि भाई मैं तो घुस रहा हूँ, मेरे पास मास है, मेरे पास मास है, तो मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ उन पे भी, वो भी मेरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसा है क्या कि हम दोनों ऐसे क्लिंग कर जाएंगे एक दूसरे में? ऐसा है, वो होगा कि हम गए सेंटर में और वहाँ पे सर पढ़ा रहे थे और क्लास चल रही थी, आई एंटर्ड द क्लास एंड सर आके जैसे ही देखा कि अरे यश के पास तो मास है एंड इवन आई हैव मास, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स एग्जर्ट करते हैं और जाके चिपक गए। ऐसा कभी होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता यार? फिर तो ये डिफाई कर गया, फिर तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही डिफाई हो गया पूरा, क्योंकि न्यूटन ने तो कहा था, ये देखो साफ साफ लिखा है इधर, कहाँ गया, ये साफ साफ लिखा है कि ईच एंड एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स ईच अदर बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, दिस phenomenon इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, एंड ड्यू टू द फोर्स व्हिच दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। I remember that I have discussed this previously as well. As far as I remember, because in the initial classes we were talking about this thing. But ठीक है, today I'll discuss it once again. ठीक, due to friction, no Shruti. Due to small value of G, force is negligible. Okay, okay, fine. चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन I'll put up. You said due to small value of G. तो ये बताओ, ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, तो ये जी की वैल्यू क्या बदल जाएगी कहीं पर? से अगर मैं अभी इलाहाबाद में हूँ एंड मैं चला जाऊँ अहमदाबाद, चला जाऊँ सर के पास या कहीं पर मैं चला जाऊँ, तो क्या जी की वैल्यू बदलेगी? जस्ट क्विकली आंसर दिस, बदलेगी जी की वैल्यू? बिल्कुल नहीं बदलेगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट मतलब फिक्स रहेगा हर जगह, चाहे तुम जहां चले जाओ। तो ये बताओ, अगर जी की वैल्यू पे चीज डिपेंड कर रही होती, तो फिर तो अर्थ को भी हमें खींचना नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा मास तो बहुत कम है, और ना ही हमें अर्थ को खींचना चाहिए था, क्योंकि मास तो अर्थ का मास ज्यादा है। एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, जस्ट लीव एक्सेलरेशन, जस्ट कीप इट असाइड, जस्ट टॉक अबाउट दी फोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। तो फिर तो अर्थ को भी नहीं खींचना चाहिए था, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी डिफाई हो जाता फिर तो, अगर जी पे डिपेंड करती है सब चीजें। एज यू सेड दैट
ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी। ठीक, तो यू आर करेक्ट, और मतलब बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है उसमें। लेकिन आई वॉन्ट टू सी देयर इज वन मोर आंसर टू दिस क्वेश्चन। जी इज बिल्कुल फाइन, नो इश्यूज, बट जी पे अगर हम लोग डिपेंड करने लगे तो जी तो किसी भी चेंज ही नहीं होगा, जी तो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक, जी कांस्टेंट रहने वाला है। ऑल्सो मास एंड डिस्टेंस, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे मास को हम लोग थोड़ा सा और इलेबरेट करते हैं। अब देखो, लेट्स गो बैक टू द एग्जांपल। सपोज नीलेश सर इज टीचिंग इन आवर क्लास in the offline center. I visited the center, and as soon as he sees, Arey, Yash is entering the class, everyone sees Yash is entering the class, they all come and we all cling to each other. ठीक, ऐसा कभी नहीं होता है, तो फिर तो ये कह सकते हैं कि हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही बेकार हो गया। ठीक, पूरा कॉन्सेप्ट ही बेकार हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब सी, देयर आर ऑलवेज सम कंडीशंस इन फिजिक्स, देयर आर कंडीशंस व्हिच आर ऑलवेज देयर, देयर आर प्रीरिक्विजिट्स ऑफ एवरीथिंग। सो अब देखो मास, जैसे अभी विवेक रोट मास एंड डिस्टेंस। ठीक, तो जी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, जी बिल्कुल सही कहा, छोटी वैल्यू है, बहुत मान रहे हैं, बट जी पे इतना डिपेंडेंस नहीं जितना मास पे डिपेंडेंस है। एंड मास कितना है हम लोग का, कितना है? 70 kg से आई एम 80 kgs, ओके। एंड सर हु इज टीचिंग, सी ही इज आल्सो अराउंड 56 60 kgs से 65 70 kgs। तो मास बहुत छोटा है, बहुत छोटा मास है। तो हम लोग पॉइंट मास एक तरीके से, मतलब बहुत वीक फोर्स होता है। फोर्स लग रहा है, ये चीज यू कैन नेवर से कि फोर्स नहीं लग रहा है। इफ देयर इज एन ऑप्शन कि फोर्स है कि नहीं दो के लोगों के बीच में, द आंसर विल बी यस, है। यू हैव टू टिक दैट ऑप्शन, फोर्स है बट नेग्लिजिबल फोर्स है। एंड वो फोर्स और क्यों घट जाता है? क्योंकि जी की वैल्यू भी बहुत छोटी है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11। तो उससे भी फोर्स की वैल्यू बहुत घट जाती है। सो विवेक वाज राइट इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन ही सेड दैट वी कैन, व्हाट ही सेड एग्जैक्टली, कि जी की वैल्यू बहुत छोटी है ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, फोर्स इज नेग्लिजिबल। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। बट मास भी तो देखो, मास कितना है? अर्थ का मास 9 इंटू 10⁻²4, हमारा मास केवल मतलब 10 कितना, 50-60 किलो, दैट इज इट। सो मास में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे क्या, मास सेम है बट पॉइंट मास है हम लोग अर्थ के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत छोटे मास है हम लोग। तो इसीलिए ऐसा नहीं होता कि हम गए क्लास में और आके हमसे सब लोग चिपक गए एकदम से कि नहीं, न्यूटन ने तो कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट, सो एवरीवन हैज टू क्लिंग टुगेदर। ठीक, तो ऐसा अगर होता तो आई एम सिटिंग इन माय रूम एंड एवरीथिंग वुड हैव जस्ट क्लिंग टू मी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बट वो बहुत नेग्लिजिबल फोर्स हो जाता है। तो ये चीज याद रखनी, कंडीशंस यहाँ पे यही है कि जी की वैल्यू बहुत छोटी है, मास भी बहुत कम है, तो ओवरऑल जब इफेक्ट आता है ना, तो वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। बट अर्थ के केस में क्या है, अर्थ के केस में क्या होता है, अर्थ का इतना हैवी मास है, ठीक, इतना हैवी मास है, 9 इंटू 10⁻24 6 इंटू 10⁻24, वॉट एवर इट इज। एंड हमारा इतना कम मास है, तो एकदम आसान सी बात है कि ज्यादा मास है उसका, हमको आराम से खींच लेगी। बट और वो नलीफाई कर देगी, वो जी की वैल्यू को भी नलीफाई कर देगी, क्योंकि सी 10⁻−11 है ये, ओके। 10⁻−11 अगर हम इसको करेंगे इंटू 10⁻24, तो क्या होगा? +13 में आएगा कि नहीं आएगा आंसर? तो मतलब कि वो फोर्स अपने आप ही इतना, अब वो -11 में था अभी तक, अब वो +13 में चला गया। बस सिंपल सी बात एकदम, जो चीज माइनस में थी अब वो प्लस में चली गई, तो ओवरऑल इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया। तो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को, द ग्रेविटेशनल फोर्स विच अर्थ exerts on us, that is gravity, that is nothing but gravity। ठीक, तो अब ये क्लियर होगा कि क्यों नहीं हम लोग रास्ते में चलते रहते हैं तो एक दूसरे से जाके चिपक जाते हैं, लड़ जाते हैं। ठीक, फ्री फॉल पढ़ेंगे, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे आलम, फ्री फॉल के बारे में अलग से, उसको एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। We can pull each other if we overcome earth gravity। uh, Not possible, but yes, hypothetically you can say it। So ये क्लियर हो गया, क्योंकि इसके आगे अभी देर आर मेनी क्वेश्चंस, मतलब नॉट मेनी क्वेश्चंस बट या फ्यू क्वेश्चंस जो कि और इस पे डिस्कस करने हैं। वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस कि अब और आगे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चीज के ऊपर, क्योंकि ये छोटे छोटे डेफिनेशन से ही ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आई वाज गोइंग थ्रू, बिलीव मी, आई वाज गोइंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस of prelims GS1 also, and apart from that of paper 1,
and I saw some questions which were like there was nothing in those questions, but they had specifically targeted a few words. Just out of those few words, I'm talking about polity. Okay, I'm talking about polity. Just out of those few words, they made us such a good question that I'll tell you, if, even if a person has read that book, any book, even 10 times, but there is a possibility even that person would take the wrong option for that particular question, because word से question बना रहे हैं, word से. So that is what I am even trying to do, कि word से question बनाओ, basic से question बनाओ. वहीं पर फंस जाते हैं हम लोग, बेसिक से क्वेश्चन. क्योंकि होता क्या है, सब चीज पढ़ लिया, एवरीथिंग, हम लोग बुक पढ़ ली, एक बुक नहीं 10 बुक पढ़ ली, सब पढ़ ली, लेकिन बस वही होता है कि हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि यार बेसिक से क्वेश्चन बनाना है. व्हाट इज स्टेट, एग्जैक्टली दैट क्वेश्चन आल्सो, दैट वाज अ रियली गुड क्वेश्चन. एंड एक क्वेश्चन और था रिगार्डिंग सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाले क्वेश्चन था. जस्ट सी दैट क्वेश्चन वंस इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इट वाज अ गुड क्वेश्चन. तो वहीं पर फंस जाते हैं हम लोग, क्योंकि जब लगता है कि यार यार ये पढ़ा है बट इतने ध्यान से नहीं पढ़ा है. तो अगर इससे क्वेश्चन बनाएंगे तो सो इट वुड हेल्प अस बीट फिजिक्स, बीट पॉलिटी, बीट एनीथिंग. तो ओके, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन पॉलिटी, एंड सर जो क्वेश्चंस कराते हैं दोज आर मोर देन इनफ. सो फिजिक्स की हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे. तो फिजिक्स में अभी इतना क्लियर है, देन वील मूव फॉरवर्ड. एंड दो तीन क्वेश्चंस और हैं. ओके, नाउ I have a few questions. First, let us solve this. Okay. Why don't we feel it then? So we have already got the answer to this question. Why don't we feel it then? तो ये तो I have already told you कि हम लोग जब क्लास में जैसे मैं घुसा, हम लोग को फील इसलिए होता है कि बहुत कम अमाउंट में हम लोग के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और जी की वैल्यू से वो और कम हो जा रहा है, तो फील नहीं कर पाते. बट देर इज अ फोर्स. ठीक, ग्रेविटी भी हम लोग क्या फील कर पाते हैं? तब फील करते हैं जब ऊपर उठेंगे तो नीचे आ जाएंगे, वो चीज है. लेकिन फील क्या है, वो तो हम लोगों ने माना हुआ है कि हाँ भाई अर्थ के पास कुछ है ऐसा जो हमको नीचे खींच लेता है, तो बस दैट इज ग्रेविटी. जो आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी गॉट दिस आंसर कि यस, देयर वी दैट द फोर्स इज देयर बट दैट इज नेग्लिजिबल. चलो एक क्वेश्चन और. व्हाई डोंट प्लैनेट्स कोलाइड विद ईच अदर, व्हाई डोंट अर्थ कोलाइड विद सन, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है? एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद है, बट सन का मास बहुत ज्यादा है. ठीक, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल तो और स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग ग्रेविटेशनल पुल होगा उसका. ठीक, sun's gravitational force holds the planet in their place. ओके, ठीक है, आंसर गलत नहीं है, बट एग्जैक्टली इट्स नॉट द आंसर विच आई वाज एक्सपेक्टिंग. बट ठीक है, हाँ समझ जाएंगे हम लोग इसका. ये भी सही आंसर है कि ठीक है, व्हाई डोंट अर्थ कोलाइड विद सन. ठीक, इसका भी आंसर, सॉरी जस्ट अ सेकंड, ये आंसर और ये आंसर एक वक्त सेम ही है. ठीक, व्हाई डोंट अर्थ कोलाइड विद सन. तो as Shruti has written in the chat, sun's gravitational force holds the planet in their place. Okay, fine. But any other answers, is if anyone is having, then please do write in the chat. Both relative gravitation stable themselves. Okay, just a second, let me check sun's mass. Okay, I'm not sure. Okay, it's in 10 to the power of 30. Okay, earth is 10 to the power 24, so 30 plus 24 becomes 54. So you can imagine the amount of force which the gravitational pull of sun is creating.
then why don't the planets collide into gravitational pull of different planets? Okay, हाँ ये भी आंसर हो सकता है इफ वी थिंक दैट वे कि हाँ अर्थ सन को खींच रहा है, सन अर्थ को खींच रहा है, अर्थ सन को खींच रहा है, बीच में प्लैनेट्स भी हैं, उनसे भी इंटरेक्शन हो रहा है। बट इसका एक सिंपल सा अगर एक आंसर देना हो एंड जो कि हम लोग उसको भी पढ़ेंगे अच्छे से और आगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ये सब चीजें कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं अभी आज कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ ये सब टर्म्स बोल के। बट एक सिंपल सा आंसर इसका ये है कि रिवॉल्व भी कर रहा है अर्थ, रिवॉल्व रोटेट दोनों कर रहा है, ठीक है। सो सपोज यू टाई, ओके जस्ट वेरी लूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थिंग, बहुत जनरल लाइफ में आप कभी देखना, यू टाई अ स्टोन टू अ थ्रेड, okay, you tie a stone to a thread, you start doing this like this, okay, you start moving in this motion. So what happens till the time it is revolving, will it fall? Please try to relate. I've tried to create an analogy for all of you, that till the time that stone is tied to the rock and till the time we are applying this force, will it fall towards the towards my hand or toward it, will it fall down? It will not for centrifugal force, yes Alam, that we'll discuss in a new class. I don't want to confuse today, so I have a lucid explanation for this thing, just for beginner purposes. Will it fall? It will not fall, right? But once you stop this force, once you stop rotating this, it will fall down. So what is happening? The stone in this scenario is earth, it is revolving continuously around, and I'm not an expert in geography, so sure sir teaches that way better than I ever can. So we have read this in such detail, revolution and rotation, what happens, everything. So we have read this, so the least I can say is that yes, it revolves. So what is happening? The stone in this case is earth, अर्थ घूम रहा है तभी वो फॉल नहीं कर रहा है, क्योंकि एक ऐसी हाइपोथेटिकल थ्योरी भी थी, देयर आर सम वीडियो, यू कैन यूट्यूब दोस वीडियोस एंड यू कैन टाइप दैट why is what would happen if revolution rotation stops, or you can type that what would happen at what condition would the earth collide with sun. You can type in Google or YouTube, you'll find the videos. Even I would like to watch those videos. So this is what the basic case is, it is revolving, that is why it's not falling into the sun. And सबका एक orbit है, as we have already read. तो ये orbit का alignment वो भी सर ने पढ़ाया है, हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसका अलाइनमेंट पे एंड उसका मूवमेंट से, सब चीज पे बहुत चीजें पता डिपेंड करती हैं, तो इसीलिए वो नहीं कोलाइड कर रहा है सन के साथ। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसका एक एसेंस है जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कभी, बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या काम है एंड कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। बट आज के लिए यही एक्सप्लेनेशन है इस चीज का कि अगर जब तक वो पत्थर घूम रहा है तब तक तो वो नीचे नहीं गिरेगा, बट एज सून एज यू leave the thread or don't leave the thread, just stop applying, just stop your hand like this, तुरंत ऐसे ऊपर से नीचे आ जाएगा। I don't have it right now any kind of thread or thing which I can rotate, but this is the example, like this one thing I have, but it won't, okay this is not possible with this, leave it, but you have tried this, ठीक। तो वही चीज है, जैसे ही वो रोटेशन रुका, रिवॉल्यूशन रुका, वो नीचे गिर जाएगा। वही चीज अर्थ के साथ है, एंड अर्थ का तो इतना कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इतनी बच्चों की इतने अच्छे से हम लोग पढ़ाई गई हैं, सो उससे हम लोग रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक, कि होता क्या है एक्चुअल में। सो दिस आंसर यू हैव ऑल गॉट, ठीक है। व्हाट इज ग्रेविटी एंड व्हाट काइंड ऑफ अ क्वांटिटी इज इट, तो चलो इससे एक बार फिर से हमारा स्केलर वेक्टर रिवीजन भी हो जाएगा। सो जस्ट अ सेकेंड, so gravity is a gravitation force only, okay। अगर ये जो फॉर्मूला है ना F इज इक्वल टू जी m1 m2/r², इसमें जो हम लोग आइडियल कंडीशंस लेंगे, मास 1 kg लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे, एंड यहाँ पे अर्थ का मास मतलब 1 kg एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट का मास एंड
m2 में आप ले लो कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, सॉरी, अर्थ का मास तो 10⁻24 में है, यहाँ -11 में 10 13। तो जब पूरा सॉल्व वॉल्व करेंगे ना एंड डिस्टेंस लेंगे। अच्छा, एक चीज और, इस फॉर्मूले में r यानी कि डिस्टेंस है, f इज इक्वल टू 1/r²। तो ये बताओ, हम तो अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है, ये सॉरी ये अर्थ है, हम तो अर्थ पे ही खड़े हैं, तो यार ये तो यहाँ जीरो होना चाहिए, और जहां ये जीरो हुआ फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन हमें तो पता है कि फोर्स 9.8 न्यूटन होता है जो अर्थ एक्सर्ट करती है। कोई आंसर कर सकता है इस चीज को कि हम तो अर्थ पे ही खड़े हैं, तो कौन सा डिस्टेंस हुआ? जब, अब मैं आपको कह दूं कि अ, जो भी इलाहाबाद में लोग हैं वो समझ जाएंगे, बाकी लोग भी समझो। एक जगह एक चौराहा है, ठीक है, सुभाष चौराहा, मैं आपको कह दूं कि आपको सुभाष चौराहा पे आना है, ठीक, एंड आप मुझे बोल रहे हो कि मैं तो सुभाष चौराहे पे ही खड़ा हूँ। सर मैं तो वहीं खड़ा ही हूँ, तो मेरा डिस्टेंस तो वहां से वहां जीरो हो गया ना फिर। तो ये कोई बता सकता है कि ये जीरो क्यों नहीं हो रहा, और 9.8 क्यों आ रहा है, इनफाइनाइट क्यों नहीं जा रहा है? कोर टू क्रस्ट का डिस्टेंस, हाँ ठीक है, सही है। एक्चुअली कोर टू क्रस्ट में इतना नहीं जाते हैं, बस अर्थ के सेंटर से हमारे सेंटर का डिस्टेंस वो नापते हैं। तो कोर टू क्रस्ट इज फाइन, जोग्राफिकल टर्म्स में बिल्कुल सही है, वो डिस्टेंस लेते हैं हम लोग। ये नहीं कि हम अर्थ पे खड़े हैं तो हमने बोल दिया कि जीरो डिस्टेंस है हमारा, हम सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस लेते हैं अपने सेंटर तक, वो डिस्टेंस होता है, ठीक, सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक, तो ग्रेविटी का काम यही है, एंड दिस इज व्हाट ग्रेविटी इज। सो ग्रेविटी में जब हम लोग सॉल्व करते हैं एफ इज इक्वल टू जी m1 m2/r² को, तो हमको पता चलता है कि एफ की वैल्यू आ रही है 9.8 कुछ जो आती है, जो कि ग्रेविटी की है। तो वही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ हम पे लगा रही है। एंड चलो अब क्विकली, gravity is a scalar or a vector? Please answer this question. What is gravity? It is a scalar or a vector quantity? Scalar. Okay. Anyone else? Scalar. Shruti has answered scalar. Vector. Vector. Yes, vector quantity. वेक्टर क्यों है, हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्लीज बेयर विथ माय हैंड राइटिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर, isn't it? Acceleration is vector quantity. बस acceleration due to gravity would also be a vector quantity, and इसका डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स अर्थ, क्योंकि अर्थ लगा रही है हम पे, तो डाउन। जैसे कि हम लोग एफबीडी में हम लोगों ने सीखा, एक ब्लॉक है उस पे नीचे की तरफ हो सकता है, वही ग्रेविटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है। सो बिफोर एंडिंग क्लास, लेट अस सी सम मीम्स एंड जोक्स, कहाँ कहाँ से उठा उठा के ढूंढने पड़ते हैं, ठीक। तो ये देखो, ये सभी को याद होगा, ये एक बहुत पहले एक वायरल हुआ था, भाई 100 200 ज्यादा ले ले बट लैंड करवा दे, ठीक। ये उससे बोल रहा है कि भाई 100 200 ज्यादा ले लैंड करवा दे, ठीक। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि ये लैंड तो फिर भी करेगा, क्यों करेगा, किस किस चीज की वजह से लैंड करेगा, ड्यू टू विच फोर्स? वो उसको पैराग्लाइडर लैंड करवाए ना कराए, बट वो नीचे आएगा ही आएगा, ठीक। तो किस फोर्स के थ्रू आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, बस ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो ये सीन, मार्वल फैंस कौन कौन है यहाँ पे, चलो क्विकली एक बार बताओ। ये सीन देखो, ये देखो, ये थॉर जब दूसरे प्लेनेट से ऊपर नीचे आता है, तो कैसे नीचे आया ये दिखाते हैं पिक्चर में कि ऐसे वो जादू है, कुछ ऐसा होता नहीं है, सब चीज साइंटिफिकली है यहाँ पे, पूरा साइंस बेसिस पे सब कुछ है।
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से सब कुछ ये नीचे आ रहे हैं लोग। अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि नीचे खींच रहा है। ठीक, चलो ये, अरे ओके, ये एक पिक्चर आई थी, सभी को पता है, अच्छे से याद होगा। ठीक, अब काफी सैड सीन था ये, बट इसमें हम लोग इमोशनल एस्पेक्ट को नहीं कवर करते हैं, साइंटिफिक एस्पेक्ट पे जाते हैं कि जब ये वहां से ये नीचे गिरी तो ये नीचे क्यों आई। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आई। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ इमेजेस हैं जो दिमाग में ऐसे रख रिकॉल कर सकते हैं कि अरे हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटी क्या है, रिलेशन क्या है। न्यूटन वाला एग्जाम्पल भी था। ठीक, तो ये जितनी चीजें सब साइंटिफिक बेसिस पे हैं, मूवीज में उसको दिखाते हैं बढ़ा चढ़ा के, बट ऐसा होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बस इसी के थ्रू हम लोग आइडेंटिक मेमोरी में बैठा सकते हैं कि हाँ, ग्रेविटी ये है, ग्रेविटेशन फोर्स ये है, और जितनी भी चीजें हैं, इतने ढेर सारे इमेजेस मैंने अपने पीपीटी में डाले हैं। व्हेन आई गिव द पीपीटी, यू पीपल विल इजीली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ हाँ याद आ गया। इमेज के थ्रू रिकॉल करना बहुत इजी हो जाता है। So that's why I add these jokes, memes, and whatever these things. So gravitation we have started. आज इस इंट्रो में only this much is required. इससे ज्यादा आज के लिए मैं नहीं बताऊंगा कि और क्या है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसीलिए मैंने बताया नहीं आज। अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, एंड उस पर ही डिपेंड करती है काफी चीजें। एंड ग्रेविटेशन, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा, मतलब ऐसा एक चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। Even I have some questions in my mind, and I'll write those questions and then present on the slide. So तभी समझ में आ जाएगा कि हाँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी आ रही है। ठीक, सो फॉर नाउ वी कैन कॉल इट फॉर द डे, बिकॉज आज इससे ज़्यादा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, उसमें और ग्रेविटेशन के और कुछ कुछ एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। सो यस, एंड फॉर एनी डाउट्स regarding physics, doubts regarding physics, maths, and modern physics, you can ask us personally, text us. बाकी सर लोग पढ़ाते हैं, बाकी उनसे डाउट्स हम लोग पूछ सकते हैं, बट इन सब चीज़ों के डाउट्स फॉर फिजिक्स यू कैन text me on Telegram, and I'll be the most happiest person to help you all. So thank you everyone, and I'll stop. So, okay, now I have the host right, so I'll be able to end the meeting. I'll end it. Okay, thank you everyone.